Hi everyone, this is Yesur Gandhi and welcome back to a new episode of Talkative Tuesdays जहाँ पे मैं बहुत बोलती हूँ क्योंकि लोग मेरी सुनते हैं. So firstly, thank you so much for all the love on the last two episodes and I read all your comments and I try to reply to most of them. So thank you so much for the love and here is the third one. तो I just want to share कि बचपन से I have always been सुपर इंट्रोवर्ट किड, वो बच्ची जो ना जिसका कोई फ्रेंड नहीं था, जो हमेशा स्कूल में ब्रेक में अकेले लंच करती थी, अकेले टिफिन खाती थी एंड आई हार्डली हैड एनी फ्रेंड्स. नो मैं बोलती नहीं थी क्लास में, मे बी बिकॉज आई वाज शाई, आई यूज टू थिंक अ लॉट कि ये बोल दिया तो ये क्या सोचेगा, वो बोल दिया तो ये क्या सोचेगा एंड आई नेवर रेज माई हैंड. स्कूल में भी अगर आंसर पता होता था तो भी मैं आई यूज टू बी दैट वेरी साइलेंट वेरी शाई किड until I realized that just because I was an introvert, I was losing so many opportunity. And then I realized कि अगर मैं अपने आप को वो शेल में रखूँगी, वो कंफर्ट जोन में रखूँगी, then शायद मुझे ना घर के बाहर या गली के बाहर चार लोग जानेंगे भी नहीं. एंड देन आई रियलाइज कि इफ आई वॉन्ट टू बी नोन, इफ आई वॉन्ट टू वॉन्ट पीपल टू नो मी फॉर माई स्किल्स, फॉर माई टैलेंट, आई हैव टू पुट माई सेल्फ आउट इन फ्रंट ऑफ पीपल, इन फ्रंट ऑफ क्राउड और मुझे कम्युनिकेट करना पड़ेगा. मुझे अपनी आवाज़ और मे बी my opinions, I will have to keep them in front of a group or in front of people. So I realized one thing कि अगर आप इंट्रोवर्ट हो, you have no idea how many opportunities you are losing. So try to come out of that comfort zone because I know sometimes that can be very comforting. You prefer to be silent and shant, but just because, but remember that visibility is your responsibility. Just because you don't talk in front of people, there are so many people who don't know how smart you are, how talented you are, or how much wisdom and knowledge you have. So जितना हो सके make yourself visible. Especially आज के ज़माने में social media is so easily accessible and it is almost free. आजकल हर किसी के पास social media का access है. तो start putting yourself out on social media. अगर आपको gathering नहीं है, लोग नहीं है आपके पास, and talk about things that you enjoy or start sharing your experiences or maybe start telling your stories to people. Because I feel that visibility is your responsibility. Just because you are not putting yourself out on social media, you are not making yourself visible to people, someone else who needs you, who needs your guidance is going to someone someone else. मतलब just because you are not doing that, कोई इंसान किसी और के पास जा रहा है, मे बी दैट जिसके पास वो जा रहा है वो शायद उतना टैलेंटेड नहीं है या फिर उतना क्वालिफाइड नहीं है जितने आप हो, बट जस्ट बिकॉज आप अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं कर रहे हो, the people are going to someone else, this XYZ person. So what I'm trying to say is जितना भी knowledge है आपके पास, जो भी field में, जो भी niche में, try sharing it with everyone and this can open doors to so many opportunities. Don't try to keep yourself very restricted, talk to people. People are very nice, people are very supportive and I'm sure मज़ा आता है नए लोगों से मिलके, नए लोगों से बात करके. कभी कोई मीटिंग में जाओ या कभी कोई गैदरिंग में जाओ, try to interact with new people and I'm sure in the process you will bring yourself out of that comfort zone and you will also learn a lot. तो ना कभी भी अपने आप पे डाउट मत करो यार, दुनिया इतनी बड़ी है and you are just a very 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 micro part of this big world. तो कभी भी अपने आप पे डाउट मत करो. आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी जो भी आप गो थ्रू कर रहे हो, चैलेंजेस है, आप उसको एकदम बड़ा बना देते हो कि शिट मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है, इतनी डिफ़िकल्टीज़ है. ये सोचो कि आप सिर्फ इतने से पार्ट हो इस दुनिया के. तो अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी दुनिया मत बनाओ. ये सोचो कि बहुत ही छोटे से पार्ट हो आप इस दुनिया के और लोग की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, आपसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है. सो जितना हो सके कूल माइंड के साथ ना हर सिचुएशन को टैकल करो. एंड वन थिंग दैट आई हैव लर्नड इन द लास्ट 24 years इज नेवर डाउट योर सेल्फ. क्योंकि अगर आप ही अपने आप को डाउट करते रहोगे देन आप कैसे कर पाओगे जो भी आपको करना है. नाउ कैन यू एक्सपेक्ट द वर्ल्ड टू बिलीव इन यू. सो अगर आप चाहते हो दैट यू वांट टू डू अ लॉट इन लाइफ, यू नीड टू have that immense faith in you because जब आपके पास अपने आप पे भरोसा है ना, ट्रस्ट में दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती. एंड अ लॉट ऑफ पीपल गो थ्रू सेल्फ डाउट, बट कभी कभी क्या होता है ना कि उनको बस जस्ट दिस वन थिंग दैट दे हैव फेथ इन देमसेल्व्स एंड कहीं से भी उनको लगता है कि वो कर लेंगे एंड एक्चुअल में वो लोग कर लेते हैं बिकॉज दे फिगर आउट वेज. तो कभी भी माइंड में वो सेल्फ डाउट से मत, कुछ भी भले इट इज़ अ बिजनेस और इट इज़ स्टडीज और एनीथिंग यू वांट टू स्टार्ट, डोंट डू इट विद अ लॉट ऑफ सेल्फ डाउट बिकॉज
जस्ट बिकॉज आप अपने आप पे डाउट कर रहे हो, आपको आइडिया भी नहीं है कि आप कितना कुछ, यू हैव सो मच पोटेंशियल इन यू, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन थिंग यू आर नॉट गिविंग योर सेल्फ दैट अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर एंड टू create something magical for you. The next thing that I want to share is अपनी लाइफ के मेन कैरेक्टर बनो। कितनी बार होता है कि हम किसी और इंसान को हमारी लाइफ का मेन कैरेक्टर बना देते, हम उसे खुश रखने के लिए कुछ भी कर लेते हैं यार, हम हदें पार कर लेते हैं। जस्ट बिकॉज दैट वन पर्सन इज वेरी वेरी स्पेशल टू अस, वी गो टू एनी एक्सटेंट टू मेक दैट पर्सन हैप्पी। तो डू दैट फॉर योर सेल्फ एंड डोंट एक्सपेक्ट दैट टू कम फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। सो खुद पे काम करना शुरू करो। ये सोचो कि जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको आप कैसे कैपिटलाइज कर सकते हो, या उस पर आप और इम्प्रूव करके क्या कर सकते हो, रादर देन ऑलवेज थिंकिंग अबाउट कि यार मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। अपनी स्ट्रेंथ को अपना सुपर पावर बना लो। अपनी स्ट्रेंथ को ये सोचो कि आपके पास एटलीस्ट ये चीज़ें हैं, अब इससे आप क्या क्रिएट कर सकते हो। सो ऑलवेज खुद पे काम करो। एंड एक और चीज़ जो मैंने सीखी इसकी लाइफ में ना, गलती से भी कभी भी नेगेटिव सेल्फ टॉक मत करो, इवन इफ एज अ जोक। आपको लगता है कि हम कभी कभी नेगेटिव सेल्फ टॉक करके खुद को ही रिजेक्ट करते हैं। सो आई टेल यू दिस वन इंसिडेंट। एक बार ना मेरी मम्मी कोई तो जूस बनाया था मम्मी ने, एंड अकॉर्डिंग टू हर इट वॉज वेरी हेल्थी जूस, बट उसका टेस्ट वॉज पैथेटिक। मतलब मुझे ना वो दवाई जैसा लगता था हमेशा टेस्ट, और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था। तो मेरी मम्मी ने, ऑफ कोर्स मम्मी को पता था कि यार मम्मी रख के जाएगी और मैं पीऊंगी नहीं, और 2 घंटे बाद आएगी और वो ग्लास उधर की वैसी पड़ी रहेगी। तो एक दिन मम्मी आई वो ग्लास लेके, एंड मम्मी ने ज़बरदस्ती मेरे को हाथ में पकड़ा, एंड शी स्टार्टेड सेइंग यू नो ये जूस बहुत फ़ायदा करता है, बालों के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, शरीर को ठंडक पहुंचाता है, एंड शी स्टार्टेड सेइंग दिस। एंड जस्ट बिकॉज मुझे इसके फ़ायदे पता चल गए, नाउ भले वो जूस कितना भी कड़वा था, द मोमेंट आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग इट, माई मदर स्टार्टेड सेइंग एफर्मेशंस बाहर से, यू नो दिस जूस इज मेकिंग यू हेल्दी, दिस जूस इज गिविंग यू अ क्लियर स्किन, दिस जूस इज कीपिंग यू फिट, ये आपके आइज़ के लिए अच्छा है, बालों के लिए अच्छा है। एंड आई drank the whole juice even without realizing कि उसका टेस्ट कैसा है। The one simple thing that I'm trying to say is कभी कभी जब हमें कोई चीज़ करनी नहीं पसंद होती है, but the moment we start saying बार constant good affirmations, we start believing in them and we start behaving in a good positive way. So कभी भी नेगेटिव सेल्फ टॉक मत करो, अपने आप को अपने बारे में नेगेटिव मत बोलो, इवन इफ इट इज़ एज अ जोक, बिकॉज ना माइंड को पता नहीं होता है कि तुम मजाक कर रहे हो। अगर तुम मजाक भी कर रहे हो ना तो कहीं ना कहीं माइंड बिलीव कर लेता है। सो जितना हो सके स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अफर्मेशंस, बिकॉज ट्रस्ट मी इट इज़ गोइंग टू गिव यू सो मच पावर टू डू इनक्रेडिबल थिंग्स। कभी कभी जब मेरे को भी वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, एंड बहुत बार ऐसा होता है दैट आई हैव टू पुश माई सेल्फ, एंड ऐसा लगता है कि यू नो मन नहीं है तो भी करना है, एंड देन आई स्टार्ट सेइंग दिस, यार मुझे मज़ा आता है वीडियोस बनाने में, आई लव मेकिंग वीडियोस, आई लव कमिंग ऑन कैमरा, आई लव टॉकिंग टू यू गाइज। एंड द मोमेंट आई स्टार्ट सेइंग दिस, अब मेरा ना अपने आप मन करता है कि नो I have to make a video. And the next thing that I want to say is internet is a huge place. ठीक है, यहाँ पे आपको हर तरह के न्यूज़ मिलेगी, कंटेंट मिलेगा, नेगेटिव न्यूज़, मेजरली तो सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ ही मिलती है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे फ्लड्स आ गए, इसकी डेथ हो गई, ऐसा हो गया, ये हो गया, एक्सीडेंट्स हो गए। तो जितना हो सके प्लीज़ नेगेटिव कंटेंट को कंज्यूम मत करो, नेगेटिव न्यूज़ को कंज्यूम मत करो। नहीं तो क्या होता है ना कहीं आपके दिमाग में नेगेटिविटी बहुत चल रही होती है। स्टार्ट टेकिंग वेरी माइंडफुल डिसीजंस। अगर आपको पता है कि कोई वीडियो आपके लिए सही नहीं है, या कोई वीडियो में बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं, स्टे अवे फ्रॉम दैट, बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट कंज्यूमिंग नेगेटिव कंटेंट आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। सो अच्छा कंटेंट कंज्यूम करो। अगर आपको, यू विल सी इफ़ यू चेक आउट माय इंस्टाग्राम, आई हैव वेरी लिमिटेड फॉलोअर्स, हार्डली 280 270 ऐसे कोई फॉलोअर्स होंगे, एंड आई डोंट फॉलो पीपल हु आई डोंट लाइक, और मे बी जिनका कंटेंट मुझे पसंद नहीं है, या फिर जिनका कंटेंट बहुत ही नेगेटिव तो नहीं बोलूँगी, बट यू नो अननेसेसरी वो मीडियोकर थिंकिंग वाला होता है। तो आई डोंट लाइक टू फॉलो दीज पीपल, बिकॉज जैसे आप लोगों को फॉलो करोगे, जैसा कंटेंट आप कंज्यूम करोगे, वैसा ही आपका दिमाग चलेगा। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे, यू विल बी लाइक अरे यार मुझे भी ये करना है, मुझे भी वो करना है। किसी
स्टार्ट फॉलोइंग इंस्पायरिंग पीपल ऑन सोशल मीडिया। सो या इसके साथ साथ आप अपने आप नोटिस करोगे कि यू नो आपकी भी गोल्स और एस्पिरेशंस बढ़ रहे हैं एंड यू ऑल्सो वॉन्ट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। द नेक्स्ट थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू इज नेगेटिव कॉन्टेंट के साथ साथ नेगेटिव लोगों से भी दूर रहो। अगर आपको कोई लग रहा है कोई इंसान आपके लिए सही नहीं है, दूर हो जाओ। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आपको टॉक्सिक लोगों से दूर रहना है, तो अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया उसको प्लीज़ मेक श्योर कि फॉलो करो, बिकॉज नेगेटिव लोग ड्रेन योर एनर्जी एंड कभी कभी ना ये घर वाले ही होते हैं। अगर कोई इंसान आपको भाव नहीं दे रहा है या आपके कॉल्स पिक नहीं कर रहा है, मैसेज नहीं कर रहा है, रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो और जब भी आप जाते हो वो अवेलेबल नहीं रहते, तो उनको एक चीज़ बता दो कि बेटा दरवाजे की कुंडी दोनों तरफ होती है, आप भी चिटकनी लगा दो और भाग जाओ, उनसे दूर हो जाओ एंड ज़्यादा उनको भाव मत दो, ज़्यादा उनको अपनी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंस मत दो जितना वो डिजर्व भी नहीं करते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू से इज I have realized this one very very important thing and that is कि कभी भी ना अपने इमोशंस को आप पे कंट्रोल मत करने दो। जब मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ तभी भी मैं कुछ काम नहीं कर सकती, और जब मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ तभी भी कोई काम नहीं कर सकती। सो ये जो एक्सट्रीम इमोशंस होते हैं ना, जब बहुत खुशी के और बहुत सैडनेस के या फिर लो फीलिंग वाले, उसमें इंसान काम नहीं कर सकता। इंसान सिर्फ एक इमोशनली बैलेंस्ड स्टेट में काम कर सकता है, ना ज़्यादा खुशी ना ज़्यादा दुख। तो जब जितना हो सके अपने आप को इमोशनली स्टेबल रखो। और ये आप कैसे कर सकते हो, कभी भी बाहर कुछ एक्सटर्नल वर्ल्ड में कुछ हो रहा है, बाहर की दुनिया में कुछ हो रहा है, उसको ना अपने आप पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट मत होने दो। मैंने ना बहुत सारे पॉडकास्ट किए एंड कुछ पॉडकास्ट के जो भी गेस्ट थे उनसे मैंने ये सीखा है कि सिचुएशन बाहर की कैसी भी हो, अपने आप को अगर आप शांत रखोगे, अपने आप को काम रखोगे और अगर एक शांत दिमाग से कोई भी डिसीजन लोगे ना, अपने आप को अफेक्ट ही मत होने दो। कभी कभी हमारे हिसाब से चीज़ नहीं होती, गुस्सा हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं और वो एंगर ही हमें कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। सो बाहर की दुनिया से जितना हो सके अफेक्ट मत हो, एकदम अपने आप को शांत रखो, अपने आप को काम रखो एंड कोई सिचुएशन अगर आपके हिसाब से नहीं भी हो रही हो उसको बहुत ही शांत दिमाग से टैकल करो। नेवर लेट योर इमोशंस कंट्रोल यू। क्योंकि बी इट एनी काइंड ऑफ इमोशंस, एंगर, लव, एक्सट्रीम हैप्पीनेस और एक्सट्रीम सैडनेस, एक इमोशनली बैलेंस्ड स्टेट पे रहो कि हाँ भाई कुछ भी हो रहा हो, इट इज़ नॉट अफेक्टिंग मी। व्हाट एल्स? Any questions अगर आपको कुछ भी हो, drop them in the comments below. The most important thing that I've realized is that the center of all the decisions of your life is this one particular thing and that is your health. तो जितना हो सके आपकी हेल्थ का ध्यान रखो। हम जब कोई नई गाड़ी खरीदते हैं या फिर फ़ोन खरीदते हैं, कुछ भी नया खरीदते हैं, तो हम उसका कितना ध्यान रखते हैं कि उसको स्क्रैच नहीं आ जाए, गाड़ी को पेट्रोल टाइम टू टाइम मिलता रहे, डीजल रहे, सर्विसिंग के लिए देते हैं। डू दैट सेम थिंग फॉर योर सेल्फ, डू दैट सेम थिंग फॉर योर बॉडी, बिकॉज अगर शरीर है ना तो सब कुछ है, और अगर आपने शरीर गवा दिया ना तो भाई सब कुछ होने के बाद भी आपके पास कुछ नहीं रहेगा। सो जितना हो सके अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, एक्सरसाइज करो, टेक केयर ऑफ इट, मेंटेन करो अपने आप को, अपनी बॉडी को, बी हैप्पी इन योरसेल्फ। आई एम श्योर कि जब आपका हेल्थ साथ देगी ना आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, बट अगर ये एक चीज़ चली गई ना तो आप भाई कुछ भी नहीं कर सकते हो। और कभी कभी हेल्थ की इंपॉर्टेंस कब समझ आती है पता है? जब बीमार पड़ जाते हो, जब हमें सर्दी हो जाती है, जब हम ब्रीथ नहीं कर पाते सर्दी में, तब हम रियलाइज़ करते हैं कि यार जब हम वो मोमेंट के बारे में सोचते हैं जब हम अच्छे से सांस ले पा रहे थे, राइट? वो भी हमें कितना प्रिविलेज लग रहा था। सो जितना हो सके अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, ईट गुड फूड, ईट क्लीन एंड ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, बी हैप्पी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, एनीथिंग, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, आई विल आंसर इट इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप यहाँ तक अभी तक देख रहे हो, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग एंड या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, ड्रिंक इन द वाटर, स्लीप वेल, ईट गुड फूड, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करो एंड दैट वाज इट फॉर दिस टॉकेटिव ट्यूजडेज। बहुत बोल दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।